चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, ऑल सेट, रेडी, स्टेडी, पो। चलो, तो पहले आज स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब आपका जो सेमिस्टर 1 में जो इंटरनल एग्जाम्स आते हैं, 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस। यस, प्योर एमसीक्यू बेस, बराबर, जिसमें 2 यूनिट कवर होते हैं, हर सब्जेक्ट में 2 यूनिट, 30 एमसीक्यू, बराबर है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने, ताकि वो अपना लर्निंग पार्ट जो है, और लर्निंग के साथ साथ अपना अर्निंग, मार्क्स का अर्निंग, वो भी कवर हो जाए, राइट। ताकि तब तक जो नेक्स्ट 5 मिनट्स में और पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन हो जाए, और हम जो ऑलरेडी है मीटिंग में वो एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। तो जो टॉपिक्स हमने कवर किए अब तक, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूं, राइट। देखते हैं कितने दिमाग लगाते हैं और उसका आंसर जो है वो खुद फिल करते हैं। और ये एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन हम इतने टैलेंटेड है कि हमें 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है। सर आप ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दोगे तो हम आंसर लिख लेंगे, है ना। चलो, तो स्टार्ट करेंगे। एक नोटबुक ले लो बेटा, एक नोटबुक ले लो, पेन या पेंसिल, ऐसी जगह पे लिखना जहां पे आपको मिले ये चीजें, बराबर। चलो, तो स्टार्ट करें जरा। हेडिंग डाल सकते हैं आप एसपीबी यूनिट 1, हेडिंग डाल सकते हैं आप एसपीबी यूनिट 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस। एसपीबी यूनिट 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलो, हेडिंग डाले हैं बेटा। बहुत सारे के कैमरास ऑन नहीं हुए अभी तक। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। यस, पहला लिखो। पहला, द आंसर अभी कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में भी लिखेगा नहीं। पहले क्वेश्चन लिख लो एक साथ, फिर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, आपको दिमाग लगा के उसका आंसर फिर फिल करना है, राइट। चलो, तो लिखो पहला। इजी इजी क्वेश्चंस होंगे। देर आर डैश नंबर ऑफ, देर आर डैश नंबर ऑफ categories, there are dash number of categories in economic activities, there are dash number of categories in economic activities. Done. Second, dash means any legal economic activity. Dash means any legal economic activity with the object to earn profit. With the object to earn profit. બહુ easy છે બધું. Next, a person having specialized skills. A person having specialized skills and knowledge. A person having specialized skills and knowledge is known as dash. Is known as dash. Next, a contract. अच्छा, ध्रुव ने रेज हैंड किया। यस ध्रुव। सर वो थर्ड बार रिपीट करोगे एक बार? Yes, a person having specialized knowledge and skills. नॉलेज। A person having specialized knowledge and skills is known as dash. Done. चलो आगे। Next, a contract between two parties. A contract between two parties
that is employer and employee, that is employer and employee is termed as dash. A contract between two parties, employer and employee, is termed as dash. Next, the reward, the reward, the reward you get in business, the reward you get in business is dash. Next, वापस the reward, वापस the reward you get in profession, the reward you get in profession is dash. Next, obviously वैसा ही होगा, the reward you get in employment, same repeat करो, the reward you get in employment is dash. मतलब तीनों तीन, बिजनेस भी आ गया, प्रोफेशन भी आ गया, एम्प्लॉयमेंट भी आ गया, बराबर तीनों तीन होने चाहिए. Next, the examples like, the examples like machinery, the examples like machinery, comma equipments, machinery, comma equipments, comma tools, etc. are covered under dash type of goods, are covered under dash type of goods. Next, dash provides the base dash provides the base for future activities, dash provides the base for future activities. Sure. Next, dash means division of work, dash means division of work among people, dash means division of work among people to achieve the objectives, to achieve the objectives. Next, dash is the business activity, dash is the business activity which helps, dash is the business activity which helps to transfer the goods, to transfer the goods and services, to transfer the goods and services
फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यस विधि? सर रिपीट करो ना। Okay. Dash is the business activity which transfers goods or services, which transfers goods or services from producer to consumer. Done? Chalo, next. Dash means introduction, dash means introduction of something new. Dash means introduction of something new. कितने हुए? 11। चलो ठीक है, एक और लिखो बचपन वाला क्वेश्चन आपका। डैश मीन्स गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। डैश मीन्स गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। સર આની પહેલા વાળું કયું હતું? આની પહેલા વાળું હતું ડેશ મીન્સ इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। ओके थैंक यू। ओके चलो डन। तो इतने क्वेश्चंस है, दिमाग लगाओ। आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 50% आंसर आपको आने चाहिए। मतलब अगर 12 लिखे हैं आपने बराबर, तो 6 के आंसर तो आपको आने ही चाहिए। अगर 6 के भी आंसर आपको नहीं आते हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बराबर है। एक ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाना चाहिए जहां पे आपको नहीं, अच्छा एक रियलाइजेशन पॉइंट आना चाहिए कि सर कहीं मेहनत करनी पड़ से। चलो स्टार्ट करो। रूटीन क्वेश्चंस है, ये मत बोलना सर मटेरियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेसिक्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 11-12 से जुड़े हुए क्वेश्चन है। जूम में कुछ चीजें डिस्कस हुई है उसके रिलेटेड है, तो दिमाग लगाओ। मुझे भरोसा है कि एटलीस्ट आप 6, मैं फुल मार्क्स तो नहीं बोल रहा हूं, 50% मार्क्स लावाना चाहिए એટલે पास। जलसा करो, चलो फटाफट। सर क्लास में बैठा होत ने तो कॉपी भी करी लेते, एक बीजाने पूछी लेते। एक काम करते हैं ना सर, जिसको आंसर पता चले चैट बॉक्स में डालते जाए। भूलती भी એવું કરવાનું નથી। कोई आंसर नहीं लिखेगा भी, फिर मैं जिसको पूछूंगा उसको आंसर बताने का है। बेटा इतने सारे के कैमरास अभी भी ऑफ है, क्यों बेटा ऐसा कर रहे हो आप लोग? मानवी फ्रॉम सुभानपुरा, पार्थ प्रताप नगर, अर्शवी, विश्वा, प्रीत बेटा रीनेम कर दो, प्रीत गांधी। ब्रांच का नाम आगे कर लो बेटा, एब्सेंट चला जाएगा। भावना, अनुष्का, मेरे को होस्ट आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में रिमूव कर देंगे अगर आप सबके कैमरास ऑन नहीं हुए तो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में को होस्ट प्लीज रिमूव कर दो जिनके कैमरास ऑफ है। चलिए फटाफट जिसका हो जाए वो थम्स अप करेगा, सबके सब जिसका हो जाए वो थम्स अप करेगा, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने लोगों का हो रहा है, तो डिस्कशन चालू करें। चलो 2 लोगों ने तो थम्स अप दे दिया है, वेरी गुड। चलो फटाफट 3, चलो स्पीड बढ़ाओ, 4, 5, सुपर जल्दी। चलो फटाफट।
बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको, जल्दी। So next 2 minutes. कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है प्लीज, और ना आए तो इतना टेंशन नहीं लेना है। मेन चीज है कि जब डिस्कशन हो तब सही आंसर आप नोट कर लो, अगर गलत लिखा है तो लिखना जरूरी है, भले गलत तो गलत। ब्लैंक इज नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेबल, बराबर। खोटू लग जो आई वुड बी वेरी हैप्पी, बट ब्लैंक લખશો તો તકલીફ થશે જીવનમાં। અને થિયરીમાં તો બ્લેન્ક મુકાતું હોય, थियरी सब्जेक्ट है ना, कुछ तो लिख के आएंगे। लग जो खोटू तो खोटू, लेकिन मेन फिर करेक्ट आंसर जब यहाँ पे डिस्कस हो तो वो जरूर लिख देना, तो ये प्रैक्टिस आपको जो है वो काम आए, क्योंकि यही क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में भी आपको दिखने वाले, रूटीन वाले क्वेश्चन। ऑब्वियसली आगे और भी दूसरे टॉपिक्स करेंगे तो थोड़े और मतलब नए नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आपके ये रूटीन के क्वेश्चन से जुड़े हुए नहीं होंगे, नए होंगे। लेकिन एटलीस्ट ये रूटीन क्वेश्चन से मार्क्स तो सिक्योर कर ले एटलीस्ट। अगर ये आंसर आपको आते होंगे ना तो मतलब नैया तो पार हो जाएगी। चलो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। चलो चलो फटाफट। पार्थ प्रताप नगर, रिया कारेलीबाग, आरशवी, ओमकार, अनुष्का, श्रुति, अनन्या, हेतवी, महक। चलो डन, टाइम आउट, दैट्स इट। चलो फटाफट फटाफट। अब जिसको मैं बोलूं वो पहले क्वेश्चन रिपीट करेगा, उसके बाद आंसर बताएगा, बराबर है, ताकि अगर जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी नोट कर सके। ठीक है, चलो भाविका के साथ स्टार्ट करते हैं। यस, भाविका फ्रॉम निजामपुरा। भाविका फर्स्ट क्वेश्चन आराम से पहले, फिर उसके बाद आपने आंसर लिखा हो वो। There are dash number of categories in economic activity. 3. यस, तो क्या है, आपने आंसर क्या लिखा है? 3. 3 कैटेगरीज। Yes. सिंपल, अब लोग चेक कर लो, बराबर। पहले का आंसर है 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और भाविका आपको पता होगा ना वो तीन कौन सी है? Business, profession, employment. परफेक्ट, बराबर। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो वेरी गुड, जोरदार। तो आई होप सबने लिख दिया हो पहला वाला। चलो आशीष, आशीष फ्रॉम सुभानपुरा सेकंड। सर लेट बुलाती है पर आती नहीं, ऐसा चलेगा नहीं, जल्दी जल्दी आती रहे जे। चलो फिर और कौन दिख रहे हैं मुझे? ईशिता, ईशिता। Yes means any legal economics with knowledge and यस, आंसर लिखा है आपने? नहीं लिखा आंसर, कह दो कि झूठ है। चलो वृंदा। Yes, sir. वृंदा क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करके आंसर बता दो फटाफट। Dash means any legal economic activity with the objective to earn profit, business. हाँ ईशिता, क्या होगा आंसर? बिजनेस। क्या हो गया, स्लिप ऑफ माइंड? हाँ सर, थोड़ो सर ઊંઘમાં છે, जो વાર લાગશે, अभी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। वेरी गुड, बिजनेस सिंपल है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सुप्रियो। A person having specialized skills and knowledge is known as professional. बराबर, इज नोन एज प्रोफेशन। प्रोफेशन लिखो या प्रोफेशनल, दोनों चलेगा।
बराबर। चलो नेक्स्ट 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 जाए। चलो अब जिनके कैमरा बंद है उनको पूछते हैं, है ना। ओमकार, ए ओमकार जल्दी है। ओमकार, मानवी फ्रॉम सुभानपुरा, मानवी। नेक्स्ट, अनम्यूट अनम्यूट करो बेटा पहले। लगता है कुछ एरर आ रहा है टेक्निकल। ठीक है, रुको मानवी, आपके माइक में कुछ एरर है, नहीं सुनाई दे रहा है। अनम्यूट किया फिर भी। यस कीर्ति, कीर्ति कीर्ति Yes, sir. बोलो। हेलो, A contract between two parties, that is employer and employees, to term as many. is known as, नहीं पता कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, just chill, है ना। जलसा, इसलिए तो बैठे हम लोग, हम क्यों क्लास कर रहे हैं, ताकि अपने को आंसर्स पता चल जाए, ना आए तो घबराने का नहीं। बराबर, टेंशन है, टेंशन इधर है, इधर ऐसा ऐसा करो, हाथ करो ऐसा, टेंशन इधर है, सर पे दिख रहा है मुझे, ऐसा करो, जल्दी करो। अरे लो ना, ऐसा करो जल्दी। हाँ, ऐसा पकड़ के इसको ऐसा साइड पे रखो, तो जरा साइड पे रख दो। पसीने छूट गए तुम्हारे क्या, रिलैक्स। बराबर, देखो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, है ना। लिखो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बोलो या जॉब, सेम टू सेम। बराबर, एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स दोनों सेम ही होता है। चलो परफेक्ट, आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रिया, प्रिया फ्रॉम निजामपुरा। Business is dash profit. वापस जरा रिपीट करोगे क्वेश्चन। The reward you get in business is dash profit. What you get in business is profit, सिंपल है। बराबर, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, जय ने रेज हैंड किया है, आंसर बोलना है कि डाउट है? सर Yes. मैं बोनस लखी तो चाले? ना चले। मेन ऑब्जेक्टिव ना, रिवॉर्ड, द अल्टीमेटम रिवॉर्ड इज व्हाट, प्रॉफिट। एज अ बिजनेसमैन तुम्हारा जो रिवॉर्ड जो तुम्हें मिल रहा है अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विस, तो दैट इज व्हाट ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। बराबर, चलो फिर तीर्थ। The reward you get in profession. સર્વિસ આપીને સેલેરી મળે એટલે ડોક્ટર હોય, ડોક્ટર એક્ઝામ્પલ આવે પ્રોફેશન માં। આવે ડોક્ટર તને સર્વિસ જ્યારે આપે ત્યારે તું ડોક્ટરને શું આપે, સેલેરી આપે? ના ફીઝ હા, એવું યાદ રાખવાનું, એક્ઝામ્પલ યાદ રાખી લેવાના, એવું કઈ થોડી છે કે આપણે પેલું લાઈન લર્ન કરવાની છે, એવું નહીં, કન્સેપ્ટ સિમ્પલ, કે તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, સર્વિસ લો, તો સામે શું આપો, ફીસ, તેના માટે રિવોર્ડ શું થયું, ફીસ, है ना। चलो नेक्स्ट 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 नृषि, क्या बात है, नया नाम है नृषि। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने लिखा है? हाँ। यस। The reward you get in employment is salary. वेरी गुड। चलो सैलरी सिंपल है, बराबर काम करोगे बदले मिलेगा पगार। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन दिख रहा है? नेक्स्ट है नाजिया। नाजिया थोड़ा माइक पास करो। The examples like machinery, equipments, tools, etc. are covered under dash type of base.
तो सुनाई दे रहा है, रुको मोहसिना को पूछ लेते हैं। मोहसिना आपने लिखा है? Yes, sir. हाँ, The example like machinery, equipments, tools, etc. are covered under visible type of goods. तो कौन से आपने लिखे, कौन से टाइप ऑफ गुड्स? Visible type of goods. विजिबल, विजिबल मतलब जो दिख सकते हैं वो। अच्छा रुको, बाकी के आंसर्स एक दो लोगों को पूछते हैं, कंफर्म करते हैं। क्या टाइप ना गुड्स लख्या છે? Capital goods. कैपिटल गुड्स, राइट? तो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल गुड्स, या तो लिख सकते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, बराबर। प्रोड्यूसर और कैपिटल एक ही है, तो बहुत सारों का शायद गलत हो सकता है, तो चेक करो, इंपॉर्टेंट है, बराबर। मोहसिना कैपिटल गुड्स कलेक्ट कर लेना, करेक्ट कर देना, सॉरी, बराबर। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, कौन है? Who's next? फिजिकल गुड्स भी चलेगा, लेकिन फिर ऑप्शन में अपने को देखना पड़ेगा। आपने जो बोला विजिबल, फिजिबल, वो भी चलेगा, लेकिन आप कॉलेज के मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपको ऑप्शन में है ना प्रोड्यूसर गुड्स या तो कैपिटल गुड्स दिखेगा, बराबर है। वरना ऑब्वियसली बहुत सारे मल्टीपल नेम्स होते हैं, लेकिन नहीं बोले कॉलेज मटेरियल के कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव यूज्ड द टर्म कैपिटल गुड्स, तो आपको ऑप्शन में कैपिटल गुड्स या तो प्रोड्यूसर गुड्स दिखेगा, बराबर। ये सुप्रियो का डाउट है कुछ? ये सुप्रियो अनम्यूट करो बेटा पहले। सर ड्यूरेबल गुड्स नहीं चलेगा? ड्यूरेबल गुड्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन आप देखोगे ना एग्जांपल्स मैंने जो लिए हैं, एग्जांपल्स जो लिए हैं मेन, नहीं मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, तो उनका मेन कैटेगराइज क्या है? मेन कैटेगराइज समझ रहे नहीं? जैसे आपको कोई जब नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आपके और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना, घर में अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, बाहर कोई आपके दोस्त, तो पता ही हमें कौन से नाम से बुलाते हैं हम सबको, है ना? तो वो सब मतलब वो सेकेंडरी आएगा। प्राइमरी नाम क्या है? सुप्रियो। तो समझ में आया था? जब कोई पूछता है कि भाई ये एग्जांपल्स मेन कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ऑब्वियसली आता है वो कैपिटल गुड्स या तो प्रोड्यूसर, राइट? ठीक है, वो बाकी सब उसके वो पेट नेम जैसा है, तो पेट नेम को प्रायोरिटीज ऑब्वियसली नहीं मिलती है द एक्चुअल नेम, राइट? तो आपको अगर एग्जाम में आता है तो कैपिटल या तो प्रोड्यूसर गुड्स, वो आपको याद रखना है, ठीक है? चलो फटाफट नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट? अक्षा, अक्षा ने लिखा है क्वेश्चन नेक्स्ट। हेलो हेलो हेलो, ये कुछ लोग के माइक क्यों नहीं चल रहे हैं? तोड़ दो ये माइक, कहां से लाते हैं ये माइक? क्यों नहीं चल रहे हैं? अक्षा वो माइक हटा दो, वो स्पीकर पे लगाओ तो हो रहा है। चलो एरर आ रहा है, ठीक है, तो विल रिकनेक्ट अगेन। शील, शील, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash provides the base for future activities. से नहीं खबर सर। नहीं खबर सर, फ्यूचर इज वेरी मच सर अनसिक्योर्ड सर, मेरा भविष्य जो है वो मुझे नहीं पता है। कौन है जल्दी जो आंसर बताएगा? महक, बहुत सारी महक है, इसको बोलो जल्दी बोल दो। महक को भी नहीं पता है, हाँ, वेरी गुड। यश, यश फ्रॉम प्रताप नगर। यस सर, समय लेट ज्वाइन हुआ था। ओके वेरी गुड। महक, फाइनल आंसर आंसर नहीं खबर के पूछे છે કે બતાવે છે? અરે મને લાગ્યું કે તમે બીજા કોઈને પૂછો છો. ઓકે, શું આન્સર છે? ફાઇનાન્સ. ફાઇનાન્સ, ક્વેશ્ચન જો ક્વેશ્ચન તો પેલા ક્વેશ્ચન શું છે વાંચ લે. Dash provides the base for future activity. હા,
તો ફ્યુચર એક્ટિવિટીના રિલેટેડ આપણે શું કરીએ? Planning. 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 બરાબર, પ્લાનિંગ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. ચાલો દેવસિંહ, નેક્સ્ટ ફટાફટ. Yes, sir. નેક્સ્ટ. Sir, 10th, dash means division of work among people to achieve the objectives. Sir, delegation of authority and responsibility. Nice, sir. Specialization. हिंट दे दूं मैं आपको. हाँ. हिंट देता हूँ. मैनेजरियल फंक्शंस आपको पता है? मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, उसमें से क्या आएगा आप सोचो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट. Sorry. एक सेकेंड. ऑर्गेनाइजिंग हाउस. ऑर्गेनाइजिंग है ना. ऑर्गेनाइजिंग वही होता है ना, काम को डिवाइड करना. स्टाफिंग तो क्या होता है? रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. याद है वो चैप्टर 5 12th स्टैंडर्ड એમાં તો રિક્રુટમેન્ટ સિલેક્શન ના ટોપિક હતા ને, રિક્રુટમેન્ટ, સિલેક્શન, ટ્રેનિંગ, ડેવલપમેન્ટ, ચેપ્ટર 5 માં. બરાબર. ચેપ્ટર નંબર 4 ઓર્ગેનાઇઝિંગ માં આપણે જોયું હતું. બરાબર, ફંક્શનલ, લિનિયર, कैसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, मैट्रिक्स. बराबर. जो आ બધું યાદ છે, સરસ, વેરી ગુડ. ચાલો નેક્સ્ટ સાયરસ. ચાલો જલ્દી. Dash means introduction of something new, innovation. Yes, innovation. Superb. Innovation means introduction of something new. कुछ नया लेके आना, that is what innovation. So the right answer is innovation. बराबर. चलो, I guess अभी एक ही बाकी है. आनंद लिखा है आपने? आनंद फ्रॉम ओपी रोड. सर लेट जॉन बाहर गया. हैं सर बाहर गया, वापस अंदर. फाफड़ा जलेबी खावा गया था ना सर, वो वीडियो ऑफ था ना तो बाहर गया. ओके. चलो कौन है चिराग तो स्टार्टिंग से. हाँ सर. नेक्स्ट. सर वो डैश इज द बिजनेस एक्टिविटी वाला क्वेश्चन रह गया था. एक रह गया बीच में क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, तो बोल दो क्वेश्चन, एक बार बोल दो. Dash is the business activity which helps to transfer the goods from producer to consumer. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो राइट आंसर है, लेकिन रुको. आपका जो आंसर राइट है दैट इज फ्रॉम बोल सकते हैं कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास मटेरियल नहीं है और हमारा जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ आंसर होता है, राइट. तो मैं आंसर पहले बताता हूं, फिर आप इसके साथ जोड़ पाओगे. तो द राइट आंसर इज मार्केटिंग. राइट आंसर इज व्हाट? मार्केटिंग. यस. तो सब लोग प्लीज करेक्ट कर लेना कि मार्केटिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी, राइट, जो प्रोड्यूसर तक, मतलब वो सामान जो है प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाता है. नहीं, कंज्यूमर को कैसी रिक्वायरमेंट है, तो मार्केटिंग एक्चुअली जो है वो सारे उसके जो थॉट्स है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है, राइट. चलो नेक्स्ट है. नेक्स्ट जल्दी. मानसी. अच्छा मानसी, एक मिनट. मानसी है. हाँ रुको मानसी, एक मिनट. रेज हैंड किया है किसी ने, किसी को कुछ क्वेरी है, प्लीज अनम्यूट करो. जानवी को था शायद डाउट. जानवी नहीं होता आंसर बोलने. अच्छा ओके, आंसर बोलने के लिए, ठीक है. चलो यस मानसी ये लास्ट क्वेश्चन है ये. अच्छा ठीक है. Dash means getting the work done from others, management. ये तो बहुत ही सिंपल था, बराबर है. गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, मैनेजमेंट. चलो जल्दी सब लोग अपने मार्क्स लिख दो तो जरा चैट बॉक्स में कितने राइट हुए. सर ऐसा सुबह झूठ लिखने का, सर सुबह झूठ लिख दे.
चलो कितने हैं? कुछ लोग के 12 है, कुछ लोग के 11, किसी ने 11 क्वेश्चन लिखे, किसी ने 12, ऐसा हुआ है। एक्चुअल टोटल कितने हैं? 12 कि 13 क्वेश्चंस लिखे कितने? मानसी कितने क्वेश्चंस है? 12 है सर। 12 है ना कि 13 है? देखो 13 बोल रहे हैं, बहुत सारे 13 बोल रहे हैं। ये एक दो लोगों को जो आता नहीं होगा ना वो स्किप कर दिया है। अच्छा है, कम में से आए, 12 में से कर देने का। कुछ लोग और स्मार्ट है, 2 कम कर दो 11 में से, फिर पता चले सर मैंने तो 5 ही क्वेश्चन लिखे हैं सर, तो 5 ही होंगे। होशियारी। चलो जल्दी 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 जल्दी, दिख रहे मुझे सबके? वाह, 6 के नीचे किसी के दिख ही नहीं रहे। सर आपने बोला ना वो 6 लाने का मिनिमम, तो हम 6 लिख रहे हैं सर आपके लिए। वेरी गुड, रिस्पेक्ट है ना सर। आपने 6 बोला मतलब सर खत्म हो गई बात। फिर आपके कितनी बार तो आंसर बोलने के बाद हमने लिखा है और उसके बाद टिक किया हमने। 6 लाने का था ना अपने को, वो मैंने ब्लैंक पहले से रखा था सर। 6 नहीं लाने के थे मुझे, फिर मैं रॉन्ग लिखता, फिर पता चल जाता ना, है कि नहीं? तो बची ब्लैंक रखवाना। चलो डन, ठीक है। चलो यस, तो आई गेस ये जो पेज है उसको अच्छे से थोड़ा संभाल के रखना, राइट। और जिनका भी अगर कुछ मिस हो गया है कोई बात नहीं, आपको इसका जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर जिसका भी मिस हो गया है वो प्लीज मुझे बाद में व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकता है, राइट। इसका बैकअप आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप सारी चीजें वापस जो है वो कवर कर सको, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब साइड पे वो सब चीजें साइड पे रख दो, अब आराम से रिलैक्स। अब बातें, कंसेप्ट, चलो अपना ये थोड़ा लर्निंग पार्ट हो गया, अर्निंग पार्ट हो गया, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो याद है आपको कल हमने कौन सा टॉपिक उठाया था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बताया था मैंने कि पहले हम लोग इकोनॉमिक और सोशल 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, अब तो काफी सारे जो है अलग अलग कैटेगरीज है। उसमें पहला हमने जो उठाया था, पहला जो हमने उठाया था वो क्या था? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, बराबर। मतलब जो है बिजनेस को ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन के साथ क्या कर दिया? कंपेयर। देखा था उसमें, समझा था हमने कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज अ ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा? सर्वाइवल, कि हम बच जाए, वही बहुत बड़ा जो है वो हमारा जीत होता है। तो वैसे ही एज अ बिजनेसमैन भी आप टिक जाओ मार्केट में, वही आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। तो सर्वाइवल, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, बराबर। ये रूटीन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, ध्यान से, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। सर आज जबरू आयो पाछू, बराबर। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब क्या पता है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मतलब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन जो इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ह्यूमन प्रोसेस 12th स्टैंडर्ड याद है? 12th स्टैंडर्ड सेकेंड पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर आटलू जूरू तो याद होतुं है सर। 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर सेकेंड पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स में था उसमें एक पॉइंट ह्यूमन प्रोसेस, बराबर है। तो इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है कि नहीं? इंसान से जुड़े हुए आप। ऑर्गेनाइजेशन बनता किससे? इंसान से। और वो है किसके लिए? हम जैसे इंसान के लिए। तो आपको नहीं लगता एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेसमैन, आपको कहीं ना कहीं ह्यूमंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा? अब ह्यूमंस को समझना मतलब क्या? मतलब वो उसका कुछ मतलब अपने ऑपरेशन करके देखने का नहीं है, साइंस गिरी नहीं करने का है, बिहेवियर समझने का है। ह्यूमन का क्या समझने का? बिहेवियर। नहीं, ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो बिहेवियर आपने समझ लिया, इंसान पहचान ले, है ना? इंसान के बिहेवियर को अगर समझ लिया ना तो इंसान को पहचान लिया। जैसे नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, पता है आपने, ये पता नहीं ऑब्जर्व किया है कि नहीं, फील किया है कि नहीं, आपके जो दोस्त है ना, आपके जो दोस्त BFF, वो किसी के पता है जाने अनजाने में दुश्मन है। मतलब किसी और को वो नहीं पसंद आते, ऐसा होता है। और
ऐसा भी होता है कि मतलब हम जिसके दोस्त है वो किसी और के दुश्मन भी है, मतलब है तो वो इंसान, लेकिन कोई उसका दोस्त है तो कोई उसका क्या है, दुश्मन, राइट। हम उसके दोस्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि वो एक्चुअल है क्या, वो बिहेवियर समझ में आ जाता है, चीजें बहुत नॉर्मल है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत बार होगा, पता है अपने घर पे अपने पेरेंटिंग के भी कुछ बिहेवियर है, होय कि ना होय? महक को ये सारी चीजें जो ज्यादा पता होती है, वीडियोस बहुत बनाती है ना, इसलिए। हाँ, આપણે બધાના ઘરમાં જે પેરેન્ટ્સ હોય બધાના, એ બધા સેમ બિહેવિયર વાળા હોય, સેમ બિહેવિયર વાળા હોય કે ના હોય? ना होय, बराबर है, राइट। अब आपके पेरेंट्स को आप अच्छे से जानते हो, हाँ, ऑब्वियसली, जो आपके दोस्त नहीं जानते, बराबर। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि महक के पेरेंट्स का ऐसा बिहेवियर होगा, जस्ट एन एग्जांपल, बराबर। शायद ऐसा पॉसिबल हो कि घर के रूटीन में महक के घर पे बातें जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हो इनकी, बराबर। कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोल देने का। और आपका कोई दोस्त आपके घर पे है, आपसे पहले वो आपके घर पे पहुंच गया, बराबर, सोफा पे बैठा है, और घर पे मान लो मम्मी आई है ना, मम्मी ने आपकी फ्रेंड से बातें करना चालू कर दी, जैसे ही एक दो सवाल पूछना चालू किया ना, आपकी फ्रेंड घबराने लगी, ओ बा अब मम्मी तो क्यों बोल पूछे है ना, वो फ्रेंड शायद है ना, अगर आप नेक्स्ट 5 मिनट में अगर नहीं आओगे ना तो वो चुप जाएगी, आपने मड़िए પછી બહાર મળી ना, शी इज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि उनको वो पेरेंटिंग का बिहेवियर नेचर नहीं पता है, एंड यू आर वेरी मच यूज्ड टू इट, માટે તો કેટલું નોર્મલ છે કે મને તો ખબર છે આ વાત છે, है ना, दैट इज द रूटीन नेचर, रूटीन बिहेवियर, जो हमारे लिए बहुत इजी है। सर में आ रहा है, तो हम तो उनके साथ रह रहे हैं, है कि नहीं, हम तो बचपन से रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे, तो वो भी क्या है, इंसान है, लेकिन उसको क्या है, समझने की देर। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो चीजें कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा नॉर्मल, है कि नहीं। जैसे नहीं, आप सबको बताओ, आप जो अलग अलग ब्रांच से, कितने सारे अलग अलग ब्रांच से बच्चे हैं, पता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप है ना किसी टीचर से आप शायद कभी ना कभी डरते होंगे, थोड़ा ऐसा पॉसिबल है ना। अलग अलग ब्रांच के, मैं नाम तो नहीं ले सकता ना यहाँ पे, है ना, अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग लोगों से आप डरते हो, कोई भी तरीके से, कभी ना कभी ऐसा कुछ कांड किया होगा आपने, है ना, सटा के भी बुलाए होंगे आपके, बहुत सारी बार आपने जो है वो पनिशमेंट में लिखा भी होगा, 100 बार, 1000 बार, 5000 बार, है ना, बहुत बार इंसल्ट भी फील किया होगा पब्लिक में, सबके सामने, है ना, बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज भी किए होंगे जो कि यू नेवर एक्सपेक्टेड, है ना। कभी मतलब जैसे आपका नाम लिया ना, मार फट बोला, पता नहीं वो झंझनाटी आ जाती है ना, पतंजलि वाली फीलिंग होती है कि वो बा आया, कपाल भारती अंदर शुरू हो जाती है कि नहीं। यू जस्ट इमेजिन, आप जिन लोगों से डरते हो, हमारे तो वो कलीग्स है, हमारे तो वो कितने फ्रेंड जैसे रिलेशंस है, जिनके साथ हम लोग जो है उठते बैठते काम करते हैं, है ना, बिजनेस आगे बढ़ा रहे, तो मेरे लिए तो कितना नॉर्मल है वो, समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपने खाली ऑब्वियस उनका बिहेवियर वो स्टेज वाला देखा है ना, बोलते हैं ना वो पर्दे के आगे वाला देखा है, पर्दे के पीछे वाला जो है द रियलिटी वन, है ना, वो हमने ऑब्वियसली देखा हुआ है। आप भी शायद नहीं, जिनको पर्सनल लेवल पे अगर जानना शुरू करते हो तो आपका भी है ना वो बात करने का तरीका बदल जाएगा, जो बोलते हैं ना 1 आर्म डिस्टेंस, वो है ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं वो लेक्चर के बाद सर क्यों चाले, तो सर भी बोले अरे मास जलसा, अला सर तो आવું बोले છે, अच्छा मानस જ છે नहीं, लेकिन जो क्लास में भाई आवाज नहीं करवाना भैया, है ना, फिर नल्लागिरी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वो वाली सारी चीजें है, वो छोटी छोटी चीजें, तो ये भी अपने को है ना समझना पड़ेगा
कि भाई इतने सारे लोग होंगे जो आपके साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, बराबर है। अगर आपने उनको समझ लिया ना तो काम करवाना क्या हो जाएगा, बहुत इजी। लेकिन अगर आपने तरीका एक ही रखा तो तकलीफ, बराबर। तो ऐसा ही हुआ, एक केस स्टडी जैसा है, छोटी सी स्टोरी जैसी है, ध्यान से सुनना। एक स्टाफ मेंबर था, एक बार एक कंपनी में काम कर रहा था। उसने अपने बॉस को जाके एक बार पूछा, ध्यान से सुनना, ये सब कहानियां जो है वो किताबों में नहीं लिखी होती है, आपके कोर्स में नहीं होगा, राइट। एक स्टाफ था जिसने अपने बॉस को जाके पूछा कि बॉस, अगर फ्यूचर में मुझे आपके जैसा अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बराबर है, स्टाफ है, अभी एक हफ्ता ही हुआ है, ज्वाइन हुआ है, और इम्प्रेस हो गया अपने बॉस से कि क्या काम कर रहे हैं यार, क्या मतलब फोरकास्टिंग है, क्या एफर्ट्स है, क्या ऑर्गेनाइजिंग है, फिदा हो गए। तो बॉस को पूछता है कि यार कल उठ के मुझे भी आपके तरह अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए, मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो ये बॉस है ना, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था, हर चीज को है ना एक्सपेरिमेंट के साथ बताता था, हर चीज को एक्सपेरिमेंट के साथ ही बताता था, मतलब लाइव डेमो कुछ करके दिखाया ऐसा, बराबर। तो उसने क्या किया, पता नहीं कहां से अपने कैबिन में से 3 डॉल लेके आया। क्या लेके आया, डॉल, પેલી बेबी डॉल वाली नहीं, अदुवार से, बराबर। 3 टॉय वाली जो है वो डॉल लेके आया, बराबर। और साथ में एक है ना स्ट्रिंग, एक धागा लेके आया। क्या लेके आया, एक धागा, बराबर। और उस बॉस ने उस स्टाफ को ऐसा बोला कि भाई एक एक करके आपको ये डॉल उठानी है, एक एक करके आपको एक डॉल उठानी है, और ये जो स्ट्रिंग है वो डॉल के कान में डालनी है, डॉल के कानों में वो स्ट्रिंग जो है, वो धागा जो है, वो धागा काफी ऑब्वियसली हार्ड था तो वो डालना है। अब स्टाफ बोल रहा हूँ यार कहीं पूछो, मैं खोटो क्वेश्चन पूछो, तो मेरी तो उम्र है ये सब टॉय डॉल धागा कान में डालने का, क्या है ये सब। लेकिन फिर भी बॉस है भाई, होगा कुछ थॉट, तो बिना कुछ सोचे उस स्टाफ ने एक हाथ में डॉल उठाई, फर्स्ट डॉल, और फिर दूसरे हाथ से वो स्ट्रिंग उठाई और वो डॉल के कान में वो डाला। जैसे ही ये कान में डाला ना, वो स्ट्रिंग दूसरे कान से बाहर आई। उसको लगा कि यार ये कुछ तो है, मैसेज कुछ दे रहे मुझे, तो उसने रख दिया। फिर बोला कि ये दूसरा वाला टॉय उठाओ। अब आप आगे की स्टोरी ऑलमोस्ट समझ ही रहे हो, बराबर। दूसरा वाला टॉय उठाया, कान में डाला, ये बार है ना जुबान से बाहर आया, दूसरे टॉय में वो धागा जुबान से बाहर आ गया। बोले यार ये तो कुछ मैसेज दे रहे, पता नहीं चल रहा है। तीसरा टॉय उठाया और उसके कानों में डाला, बाहर ही नहीं आया, धागा बाहर ही नहीं आया। साला ये कैसा। तो उसने वापस तीनों 3 डॉल उठाए, पहले वाली उठाई, एक कान में डाला, वापस दूसरे कान से निकल रहा है। उसने एक और बार ट्राई किया, वापस वो कान में डाला, वापस ये कान से निकला। यार ये तो ऐसा ही हो रहा है। दूसरे वाले में वापस ये कान में डाला, जुबान से बाहर आया। एक और बार ट्राई करूंगा, वापस कान में डाला, जुबान से, और तीसरे वाले में वापस कान में डाला, 4-5 बार डाला, बाहर ही ना आया। तो फिर उसने फाइनली मतलब जो है वो रियलाइज किया कि अच्छा। तो आप जरा मतलब मुझे बताइए कि वो बॉस ने कौन सी डॉल सजेस्ट की होगी, 3 में से कौन सी डॉल सजेस्ट की होगी, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली। बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को कौन स्टडी कर पाया है। और आप जो समझ रहे हो कि अगर आंसर बहुत इजी होगा तो बेटा सुकेतु सर सामने है। ध्रुव, यस ध्रुव। सर वो पहला वाला, क्योंकि उसमें उसने कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गया, फर्स्ट डॉल। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके हिसाब से पहला वाला? नहीं, थर्ड। अच्छा, बदल दिया डॉल, स्लिप ऑफ डॉल, थर्ड। हाँ ये लड़की का चक्कर बाबू भैया। हाँ, लड़की का चक्कर जो आओ लपसित जवाए, है ना ध्रुव। ऐसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो यार, क्या इतने डॉल में तुम फिसल गए। सामने बेबी क्या करोगे तुम।
थर्ड वाला चलो ठीक है। हर्षित सर थर्ड। थर्ड। वृंदा सर थर्ड। थर्ड। अच्छा थर्ड के अलावा कोई हो तो चलो रेज हैंड करो। मेजोरिटी मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में भी थर्ड थर्ड डाल रहे हैं। थर्ड के अलावा कोई है मार्केट में? है कोई मार्केट में थर्ड? सब लोग मेजोरिटी थर्ड से जाएंगे ना? होए अनन्या? सर सेकंड। ओ नया नया आया मार्केट में। लॉजिक 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 तो है कि नहीं? ऐसे ही सर मजा आता है सर, सेकंड डॉल अच्छी होगी सर दिखने में, तो सेकंड क्यों? लेकिन सर मे बी जो बोल रहे मतलब जो मतलब अंडरस्टैंड करके वो सामने रिप्लाई भी दे सक रहे तो शायद कुछ आया ऐसा थोड़ा बोल। थोड़ा आ रहा है कि हाँ खाली सुना, लेकिन फिर अगर बोलेंगे ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा ना, है कि नहीं? तो ये भी थॉट सही है, चलो एक्सेप्ट। फिर दोस्त फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड। अच्छा आया, क्यों बोलना पड़ेगा ना? यस सर, मतलब अगर उसको वो चीज बॉस ने बोला वो समझेंगे तो तभी वो एक्सप्लेन कर पाएंगे या आगे किसी को बता पाएंगे कि ऐसे करना है या। ठीक है ध्रुव, वापस आंसर देना एक बार। ध्रुव आपने रेज हैंड किया है? सर वो नीचे करना भूल गया। नहीं हाँ ठीक है चलो। हर्षित? हाँ सर, थोड़ा चेंज है आंसर में। सर तीनों डॉल काम किए, क्योंकि जो यूजलेस थिंग्स है वो निकाल देने की, सो जिसमें रिप्लाई करने जैसा है उसको रिप्लाई करने का, और जो समझने जैसी चीज है उसको दिमाग में रखने का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से, वो बॉस ने ना फर्स्ट सजेस्ट की थी, ना सेकंड, ना थर्ड। बॉस ने ना सरप्राइजिंगली चौथी डॉल लेके आया। चौथी डॉल लेके आया। सर आओ चीटिंग सर, ऑप्शन मत ना दो। चौथी डॉल लेके आया और बोला ये ट्राई करो। तो उसने ट्राई किया तो कानों में पहले डाला उसके, तो दूसरे कान से निकला। दूसरी बार ट्राई किया तो कानों में डाला तो जुबान से बाहर आया, और तीसरी बार डाला कानों में तो बाहर ही नहीं आया। मतलब चौथी वाली ऐसी डॉल थी जो मल्टी स्किल्स वाली थी। बराबर है, क्योंकि तीनों तीन जरूरी है ना। बहुत सारी बातें आपको सुन के अपने पास ही रखने की, बराबर है, क्योंकि वो जरूरी है। अब आप बाहर निकाल दोगे हाँ तो बोलिया करे यार। दूसरी चीज जो कानों में डाल के बोलना भी तो पड़ेगा ना, व्हाट यू फील, व्हाट यू एक्सप्रेस। तीसरा बहुत कुछ है जो ऑब्वियसली अपने पास रोक के रखना पड़ेगा। शांति रखो, अभी ये सही टाइम नहीं है, बराबर है। तो चौथी वाली डॉल जिसके अंदर क्या हो भाई, मल्टी स्किल्स हो, जहां पे उसको पता है कि हर सिचुएशन में ये तीनों तीन में से कोई भी काम आ सकता है। तो ऐसे लोग चाहिए आपके साथ जो तीनों तीन ये जो स्किल्स जो है वो कैरी करे, तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बड़े बड़े सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ पाएगा। तो आपको ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें जब स्टाफ हायर करते हो तो मेक इट क्लियर। समझ में आ रहा है? सी ये सब अलग लेवल का तरीका है समझाने का। समझ में आ रहा है कि भाई मुझे ये आपसे एक्सपेक्टेशन, यू जस्ट इमेजिन डे वन एज एन एम्प्लॉय आपका किसी कंपनी में जब अपॉइंटमेंट हो, और उसी वक्त आपको डे वन अगर ऐसा कुछ आपको समझा दे, आपको पता चल रहा है ना कि वो सामने वो बॉस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे बवाल कब होती है दो लोगों के बीच में, जब दोनों को क्या है, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन। लेकिन घटिया बात क्या पता है, कोई एक दूसरे को बताता नहीं है। सबसे मेन चीज वही है ना, यू एक्सपेक्ट बट यू डोंट स्पेल इट आउट, बट डोंट स्पीक। तकलीफ वहां पे होती है ना, चाहे फिर वो बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, कोई भी उठा लो, हर रिलेशन में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन तकलीफ क्या होती है कि डोंट स्पीक। आटलू तो खबर पड़े જ नहीं, પણ ના પડે કહી દે એકવાર, કહી દે ને। हाँ कीधा પછી પણ ના થાય तो बेटा तुम गलत रिलेशंस में हो। बेटा बस ट्रेन और एक जाएगी दूसरी आएगी, और अब तो नौकरी भी ऐसा है, बराबर है, टेंशन नहीं लेने का। तो सिंपल चीज है, आफ्टर सेइंग योर एक्सपेक्टेशंस
वो उसके बाद भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप सिर्फ सोचते रहोगे वो हो नहीं रहा, इतना तो समझने का ना, इतना बड़ा आदमी है, इतना सालों का एक्सपीरियंस है। अरे ठीक है, थॉट शेयर करो। बहुत सिंपल एग्जांपल एक छोटा सा दे रहा हूं मैं। घर पे खाना बन रहा है, घर पे खाना बन रहा है, आपने खाया, आपको मजा नहीं आया, आपको मजा नहीं आया। हाँ, ये गलत चीज हो जाएगी कि उसी वक्त जो है वो आप है ना अन्याय करोगे उस खाने को और बोलोगे आप बेकार खावानो छे। इसमें वो स्पाइसीनेस नहीं है ना, चाइनीज बनाया है, बोले हम आवाज नहीं आओ तो यार, तो आपने उस वक्त खा लिया, लेकिन बाद में एक बार जाके मम्मी को बोल देते धीरे, मम्मी हजू थोड़ा तीखू नेक्स्ट टाइम, तो मम्मी को भी पता चलता ना कि भाई आपको कैसा पसंद है। फिर आप क्या बोलते हैं, हाँ मजा नहीं आती यार, घर है बाहर એટલે લારી પર જ ખાવાનું। પણ મમ્મીને કોને કે લારીનો આવો ટેસ્ટ છે, મમ્મીને ટેસ્ટ કરાવો એકવાર, મમ્મીને સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ કરાવો यार, સિમ્પલ ये चीज है यार। लेकिन ना આપણે તો यार આના બહાર જેવું નથી, પણ બહાર જેવું કેવું એવું બતાવો તો ખરા પેલાને ભાઈ। પણ ના સર અમે તો કોઈ બહાર સર બહાર જ મજા આવે છે। सिंपल ये चीज है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। जितना हो सके ना क्लियर क्लियर करो चीजें। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स का सबसे मेन चीज वही है ना, क्या है, क्लियरेंस। वो अगर हो गया खत्म हो गई बात, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। लेकिन जिस दिन आपने क्लियर नहीं किया और फिर सामने वाले ने भी खुद अजम्पशन लगाना शुरू किया, बराबर अजम्पशन बेस पे अगर चीजें जब चलेगी ना तो खत्म, डन। ठीक है, तो ये रूटीन सी कुछ चीजें हैं। तो होप बहुत जल्द नेक्स्ट वीक हम जो है वो ऑफलाइन मिलेंगे, राइट। किसी को कुछ भी अगर ऑफलाइन के रिगार्डिंग डाउट डिफिकल्टी हो तो आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच हेड ब्रांच ऑफिस पे फोन करके आप इंक्वायर कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, फॉर्मेलिटी है, वो सब खत्म कर दो ताकि ऑफलाइन के सेशन जो है फटाफट जो है वो शुरू हो सके, बराबर। चलो, तो वी एंड द सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, आवजो। हाय सर। Bye, sir. बाय 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 बाय।